بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں لاہور جمخانہ کلب انتخابات غیر حتمی نتائج کاسٹ شدہ 3200 میں سے 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق سلمان صدیق پینل کے 8 امیدوار کامیاب ہو چکے ہیں۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق مناپلی گروپ کے 4 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ جمخانہ انتخابات میں مجموعی طور پر کامیاب 12 امیدوار ہاؤس بنائیں گے۔ جمخانہ الیکشن میں 3 گروپس کے 36 امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ سلمان صدیق پینل، مناپلی بریکر گروپ اور پرفارمرز گروپ نے حصہ لیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے شہزاد خان عبدالی سے۔ جی شہزاد خان، بتائے گا 90% ووٹوں کی گنتی مکمل ہو چکی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل، جمخانہ الیکشن میں 90% ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور غیر حتمی نتائج کے مطابق سلمان صدیق پینل کے 8 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں اور مناپلی بریکر گروپ کے 4 امیدوار ذرائع کے مطابق کامیاب ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر اس الیکشن میں کل 36 امیدواران مد مقابل تھے، جس میں جو 12 ٹاپ سکورر ہیں وہ جمخانہ کا ہاؤس بنائیں گے، یعنی اس کی ایگزیکٹو کمیٹی بنائیں گے۔ 3 گروپوں کے مجموعی طور پر 36 امیدواران میدان میں تھے، جس میں سلمان صدیق پینل کے 12، منوپلی بریکر گروپ کے 12 اور پرفارمرز گروپ کے 12 امیدواروں نے یہ الیکشن لڑا۔ اس وقت جمخانہ میں صورتحال یہ ہے کہ مین بلڈنگ کے اندر سلمان صدیق پینل کے اور مناپلی گروپ کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں۔ اس وقت جو رزلٹ سامنے آئے ہیں اس پر جشن منانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور جو ممبران کی بہت بڑی تعداد ہے وہ میاں مصباح الرحمان اور اس کے علاوہ سلمان صدیق کو اس حوالے سے جو ہے وہ مبارکبادیں دے رہی ہے۔ جشن منایا جا رہا ہے، نعرے مارے جا رہے ہیں اور جس جگہ پہ الیکشن کی باقاعدہ رزلٹس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اب تمام ممبران، تمام ووٹرز اور تمام قائدین اس طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر میں تفصیلی طور پر نتائج ہمارے سامنے آ جائیں گے، جس میں یہ پتہ لگ سکے گا کہ جو ٹاپ سکورر کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، سلمان صدیق پینل کے ذرائع کے مطابق 8 امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اور جو منوپلی بریکر گروپ ہے اس کے 4 امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، لیکن یہ غیر حتمی نتیجہ ہے۔ حتمی نتیجے کا اعلان ابھی چند منٹس میں سامنے آ جائے گا۔ بالکل، حتمی نتائج کا اعلان تھوڑی دیر بعد کیا جائے گا۔ شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور جمخانہ کلب کے سالانہ انتخابات ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے ملک بھر سے مستقل ممبران کی بڑی تعداد لاہور جمخانہ کلب پہنچی۔ کلب کے احاطے میں غیر معمولی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی۔ جمخانہ کلب کے انتخابات میں دن بھر ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہوئی، جس میں مستقل ممبران نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ دن بھر ووٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن میں 3200 سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی اور ووٹنگ کے انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ جمخانہ الیکشن میں سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سیکرٹری جنرل ایپٹما رضا باقر، کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، علی پرویز ملک آئے، سابق آئی جی پنجاب شوکت جاوید، تیمور عظمت، اخلاق احمد تارڑ نے ووٹ ڈالا۔ سیکرٹری اوقاف احسان بھٹا، میاں اعجاز احمد، ڈی آئی جی سلیمان سلطان، طاہر علی خان نے ووٹ کاسٹ کیا۔ سابق گورنر چودھری سرور، خواجہ احمد حسان، ارشاد بی انجم، شفقت محمود، پروفیسر قاضی یعقوب اور دیگر نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ ممبران کا کہنا ہے کہ جمخانہ کلب کے انتخابات ادارے کی انتظامی سمت کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے والدین سے، بڑوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی آج عزت بخشے وہ کلب کے لیے اور اپنی ذمہ داری کو ایمانداری کے ساتھ ادا کر سکے۔ آج بڑا اچھا دن ہے جی، الیکشن ہے، ہر ووٹر اپنا ووٹ کا استعمال کرے گا اور اپنے پسندیدہ جو نمائندے ہیں ان کو منتخب کرے گا اور آنے والے وقت کے لیے کلب کی بہتری کے لیے کام ہوگا۔ میں ایز سچ کسی گروپ کو خاص طور پہ نہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ دوست ہیں تینوں گروپس کے اندر، میرے خیال میں جا کے ان تینوں گروپس کے اندر جو دوست ہیں ان کو ووٹ کریں گے۔ الیکشن میں 3 پینلز اور 3 آزاد امیدوار میدان میں ہیں۔ چیئرمین سلمان صدیق کی قیادت میں میاں مصباح الرحمان پینل شامل ہے، جبکہ احمد نواز سکھیرا،
और डॉक्टर अली रज़ाक का मोनोपोली ब्रेकर्स पैनल और कमर खान बॉबी का रिफॉर्मर्स पैनल भी इंतखाबी दौड़ में मौजूद है। इसके अलावा आजाद उम्मीदवार भी मेंबरान में पैनल का हिस्सा हैं। यहाँ पर बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। तो कोलंबो में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाक भारत एसाबे शिकन टाकरा आज होगा। स्पिनर्स का राज होगा या बल्लेबाजों की पिटाई? दोनों टीमें आज मैदान में उतरेंगी। पाकिस्तानी स्पिनर्स मैदान में जाल बिछाएंगे। बारिश हुई तो प्लान बी के तहत खेलेंगे। सलमान आगा भारत को धूल चटाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर में बड़ी स्क्रीन नस्ब होंगी। एंजॉयमेंट के लिए फुल तैयारी कर ली गई है। बुक मेकर्स की भी कोलंबो पर नजरें। जवारियों के रेट बदलने लगे। कोलंबो में T20 वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला। सबसे ज्यादा दबाव वाला मैच पाक भारत टीमें आमने सामने होंगी। दुनिया क्रिकेट की नजरें इस तारीखी टाकरे पर हैं। शहर में बड़े टाकरे की बड़ी तैयारी की जा रही है। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाक भारत मैच के लिए बड़ी स्क्रीन लगाने का फैसला कर लिया। स्क्रीन पंजाब स्टेडियम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाई जाएगी। शायकीन क्रिकेट के लिए पंजाब स्टेडियम में एंट्री फ्री होगी। कोलंबो स्टेडियम में हर तरफ बड़े मैच की तैयारियों का शोर है। पाकिस्तानी स्क्वाड का मोराल बुलंद है। टीम इंतजामिया पुरएतमाद है। खिलाड़ी पुरजोश हैं। कप्तान सलमान आगा कामयाबी के लिए उम्मीद है। कहते हैं पाक भारत मैच हमेशा की तरह बड़ा होगा। बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैच में स्पिन बॉलर्स का किरदार अहम होगा। फास्ट बॉलर भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। शहरी पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद हैं। शायकीन का कहना है कि पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है और वो मैच जरूर जीतेगी। दुआ गो है कि पाकिस्तानी टीम भारत को हराने के साथ T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लेकर आए। पाकिस्तान और भारत के बड़े मुकाबले के लिए बैटिंग माफिया भी सरगर्म है। बड़े मुकाबले के लिए बुक मेकर्स ने भारत को फेवरेट करार दे दिया। पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा मैच जो कि हमेशा ही देखा जाता है। हम तो हमेशा ही तैयार होते हैं पाकिस्तान जीते हारे, लेकिन हमने तो मैच देखना ही देखना, क्योंकि हमारा शौक जज्बा जुनून जो है पाकिस्तानी टीम के साथ है। बेस्ट विशेस हैं कि भी चलो पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, यही चीज़ हम मैक्सिमम यही कह सकते हैं। बाकी ये तो कल है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा। प्रेशर तो बिल्डअप होता है दोनों टीमों, जितना अच्छा भी परफॉर्मेंस दे लें, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच में प्रेशर तो होता है। कहता हूँ अपने करियर फोकस करें, थोड़ा हार्ड वर्क से खेले ताकि पाकिस्तान जीते मैच। और शहीन शाह अफरीदी का फेवरेट है हमारा। जी बॉस, पाकिस्तान टीम को यही मशवरा है कि अच्छा खेलें, और ख़ास तौर बाबर आजम के लिए हमारी अच्छी ख्वाहिशात हैं कि बाबर आजम अच्छा खेलें और टीम को जितवाएं। पाकिस्तान को यही मशवरा देंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस करें, अपनी जो कौम है उसको मायूस ना करें, बल्कि खुशी की खबर देंगे। भारत की जीत का भाव ₹1.60 पाकिस्तान, ₹2.40 लग गया। 1000 रुपए भारत पर लगाने की सूरत में मुमकिन वापसी ₹16 होगी। 1000 रुपए पाकिस्तान पर लगाने की सूरत में 2400 रुपए तक मिल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुंच गए हैं। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन PCB मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मिलेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी श्रीलंका पहुंच गए। मोहसिन नकवी का एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। चेयरमैन PCB मैच से पहले कौमी स्क्वाड से मिलेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे पंजाब में जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का नया बाब। कब्जा, धोखाधड़ी और गैर कानूनी ट्रांसफर के खिलाफ सख्त सजाएं। 5 से 10 साल तक कैद, ₹1 करोड़ जुर्माना होगा। गैर मनकूला इमला की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 128 के तहत ऑर्डिनेंस नाफिज किया है। पंजाब में जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का नया बाब। कब्जा, धोखाधड़ी और गैर कानूनी ट्रांसफर के खिलाफ सख्त सजाएं। 5 से 10 साल तक कैद, ₹1 करोड़ जुर्माना होगा। गैर मनकूला इमला की मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। गवर्नर पंजाब ने आइन के आर्टिकल 128 के तहत तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज करने की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के तहत गैर कानूनी कब्जे को बाकायदा फौजदारी जुर्म करार दिया गया। कब्जे में मुआवनत, सहूलतकारी या साजिश करने वालों के लिए भी 1 साल से 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा रखी गई। ऑर्डिनेंस के मुताबिक हर जिला में खसूसी पंजाब प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा, जिसके जज एडिशनल सेशन जज रैंक के ऑफिसर होंगे। शहरी बराह रास्त ट्रिब्यूनल में शिकायत दायर कर सकेंगे, जबकि ट्रिब्यूनल शिकायत पर स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब करेगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलिस और रेवेन्यू अफसरान शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल को यह इख्तियार भी दिया गया कि वो गैर कानूनी कब्जा खत्म करवा कर जायदाद असल मालिक को वापस दिलाए, पुलिस के जरिए कब्जा वागुजार करवाए और केस का फैसला 30 दिन के अंदर करे। अब यहाँ पर बात करेंगे लाहौर में मजीद 2 टीचिंग अस्पताल कायम करने का फैसला। दोनों टीचिंग अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए 191 एकड़ जमीन मुख्तस, जबकि 34 अरब रुपए लागत आएगी। लाहौर में मजीद 2 टीचिंग अस्पताल कायम होंगे। दोनों टीचिंग अस्पताल नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में तामीर होंगी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के लिए लाहौर में 191 एकड़ जमीन मुख्तस कर दी गई। हुकूमत ने ख़ियाबान अमीन इंटरचेंज रिंग रोड के साथ अराजी दे दी है। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट पर 34 अरब रुपए लागत आएगी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 18 केनाल पर इंफेक्शन डिजीजेस अस्पताल कायम किया जाएगा।
99 कनाल जमीन पर चिल्ड्रन हस्पताल 2 की नई बिल्डिंग तामीर की जाएगी। चिल्ड्रन हस्पताल 2 की तामीर का तखमीना 23 अरब 68 करोड़ रुपए लगाया गया है। 180 कनाल पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड मिडवाइफरी कायम किया जाएगा। टैक्सेस में कमी से ही बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तानियों ने $100 अरब की प्रॉपर्टी दुबई में खरीदी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का सेमिनार से खिताब। चेयरमैन एप्टमा कामरान अरशद ने कहा, टैक्सेस में इजाफे से $10 अरब बैरून मुल्क चले गए। FPCCI लाहौर ऑफिस में संतकारों से खिताब में वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था, जो इशारे आ रहे हैं, लगता है माली साल में 4.5% ग्रोथ होगी। रियल स्टेट सेक्टर के लिए वजीर आजम जल्द बड़ा पैकेज ला रहे हैं। नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं, ये निजी शोबे का काम है। हुकूमत का काम है टू प्रोवाइड द इकोसिस्टम टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर टू टेक दैट द होल डिस्कशन फॉरवर्ड, बिकॉज इट्स एन ऑक्सीमोरॉन, राइट, कि अगर आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का साइज आपने कम करना है और गवर्नमेंट ही नौकरियां दे, so that's an oxymoron in itself, you know. I never understood कि ये कैसे दोनों चीजें हो सकती हैं। ये प्राइवेट सेक्टर को हमने इनेबल करना है ताकि वो दे। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि टैक्सों की शरह कम की जाए। टैक्सों की वजह से सरमाया बाहर जा रहा है, जो हमारी मईशत के लिए खतरा है। जो टैक्स पोटेंशियल है वो तो 1.3 ट्रिलियन का है। हम 40 बिलियन रुपए इस बार लेंगे 18% सेल्स टैक्स से, और वही लोग देंगे जो सिर्फ कौन है 40 बिलियन 2% लोग जो टैक्स कल्चर में हैं। ये 50% का टैक्स इज्जत से पार्टनरशिप में हम देने को तैयार हैं। हम ये 50% का टैक्स सर झुका के अपने मुल्क के साथ काम करेंगे, लेकिन हम इस तरह कोई स्टेप तो दिखाएं कि आपके बाकी सेक्टर्स को कैसे इस बजट में लाएंगे। मुझे तो कोई स्टेप नजर नहीं आता। वफाकी वजीर खजाना का कहना था कि स्मगलिंग का खात्मा कर रहे हैं। तंबाकू शोबे में सेनेटर पर मुकदमा दर्ज करवाया। IT की बरामदात $8 अरब है, लेकिन वो आधे पैसे मुल्क में नहीं लाते। सारा पैसा वापस आना चाहिए। NFC अवार्ड की आबादी के लिहाज से तकसीम गैर मुनासिब है। चारों सूबों से मशावरत कर रहे हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ सईद अहमद, सिटी 42। ख्याबान फरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा फिर लटक गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकिस हिकमत अमली आड़े आ गई। दिसंबर के बाद दिए गए 2 माह भी खत्म होने के करीब हैं। मंसूबे को मुकम्मल करके फाइनल कारपेटिंग के लिए मजीद वक्त दरकार है। शौकत खानम से LDA यू टर्न तक नाहमवार सड़क को छोड़ दिया गया। खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबा एक बार फिर लटक गया। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की नाकिस हिकमत अमली आड़े आ गई। दिसंबर के बाद दिए गए 2 माह भी खत्म होने के करीब हैं। मंसूबे को मुकम्मल करके फाइनल कारपेटिंग के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। इससे कबल 10 माह के मंसूबे को दिसंबर 2025 में मुकम्मल होना था। वासा ने ताखीर और शहरियों के दबाव को काउंटर करने के लिए मंसूबे को ADP 2026 जून में शामिल कर दिया। ADP के नाम पर मजीद जून 2026 तक ताखीर का जवाज बनाकर मामला लटकाया जा रहा है। वासा हुकाम इससे कबल खयाबान फिरदौसी सीवरेज तब्दीली मंसूबे को दिसंबर के बाद मजीद 2 माह में मुकम्मल कराने का इंदिया दे चुके हैं। मौजूदा सूरत हाल में शौकत खानम से LDA यू टर्न तक गैर मयारी कारपेटिंग लेयर करके नाहमवार सड़क को छोड़ दिया गया है। उभरे हुए मेन होल्स को कवर करने के बजाय महज कोन्स लगाकर एहतियात के नाम पर खानापूरी की जा रही है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराया जाए। पुलिस ने शहरियों के फोन कॉल्स का डाटा गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पंजाब भर में 9,40,000 CDRs का ऑडिट शुरू। लाहौर में 2.5 लाख से ज्यादा CDRs का भी ऑडिट होगा। दूसरी जानिब लाहौर के 84 थानों में फी थाना कैमरों की तादाद 3 से 6 की जाएगी। पुलिस ने शहरियों के फोन कॉल्स का डाटा गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। पंजाब भर में 9,40,000 CDRs का ऑडिट शुरू कर दिया गया। लाहौर में 2.5 लाख से ज्यादा CDRs का भी ऑडिट होगा। DSP की सरबराही में 5 रुकनी टीम का रिकॉर्ड चेक कर रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम रीजन्स, CCD और स्पेशल ब्रांच का रिकॉर्ड चेक होगा। CDRs का मुल्जिमान से ताल्लुक चेक किया जाएगा। मुल्जिमान के अलावा दीगर की CDRs हासिल करने की वजूहात को जांचा जाएगा। CDRs हासिल करने के SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि रवां साल पुलिस ने 9 लाख केसेस CDRs की मदद से हल किए। CDRs के गलत इस्तेमाल पर तफ्तीशी अफसर
हुक्मरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब थानों में कैमरों की तनसीब और पुलिस अवाम डीलिंग रिकॉर्ड पर लाने का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर के 84 थानों में नस्ब कैमरों की तादाद 3 से 6 की जाएगी। मजीद 3 कैमरे बरामदे, इन्वेस्टिगेशन रूम, दाखिली दरवाजे पर लगेंगे। SHO रूम, फ्रंट डेस्क, हवालात के खराब कैमरे ऑपरेशनल होंगे। लाहौर के तमाम थानों में बॉडी कैम की फराहमी भी शुरू कर दी गई। हर थाने को अहलकारों के लिए 20 बॉडी कैम फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि अवाम के साथ राबते और डीलिंग कैमरों से हटकर ना की जाए। अब यहाँ पर आपको बताएं, बाज़ इलाकों में पीने के साफ पानी के मसाइल ताहाल बरकरार हैं। टाउनशिप B1 में वाक़या फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुका है। मौजूदा क्या सूरत हाल है, जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया। कि बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट ताहाल हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मौजूद है इस वक्त टाउनशिप B1 में, जहाँ पर वाक़ई फिल्ट्रेशन प्लांट गुज़श्ता तकरीबन 2.5 साल से जो है वो बंद पड़ा है और इंतहाई अबतर सूरत हाल है इसकी। इसके जो नल हैं वो नशे के आदी अफराद जो हैं वो उतार के ले गए और जाबजा अतराफ़ में गंदगी गलाज़त के ढेर नज़र आते हैं जिनसे ताफ़ुन उठता है। इलाका मकीन ये कहते हैं कि पीने का पानी या तो दूर से भर कर लाना पड़ता है या फिर ख़रीद कर पीना पड़ता है और वाहिद जो फिल्ट्रेशन प्लांट है इलाके के लिए उसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलाका मकीन कहते हैं कि पीने के पानी में मुश्किलात का सामना है। मुतालबा यही किया जा रहा है, जगह भी मुख्तस है और मौजूद भी है, तो इंतज़ामिया को फिल्ट्रेशन प्लांट दुरुस्त करना चाहिए ताकि इलाका मकीन पीने के पानी की सहूलत से फैज़याब हो सके। आदिया, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए ज़कात से मुतल्लिक़ आगाही सेमिनार, उलमा इकराम और मुखय्यर हज़रात की शिरकत, ज़कात की अहमियत और फलाही ज़िम्मेदारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सेमिनार का इनेकाद डिफेंस रोड पर वाक़ पाकिस्तान चिल्ड्रंस हार्ट फाउंडेशन में किया गया, जिसमें डोनर्स और मुखय्यर हज़रात की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी जामिया अशरफिया लाहौर के उस्ताद हदीस प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान थे। सेमिनार के दौरान ज़कात, फलाही खिदमात और कॉरपोरेट सोशल ज़िम्मेदारियों जैसे मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई। शुरका को ज़कात की अदायगी के मुआशरती और दीनी पहलुओं से आगाह किया गया। प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान का कहना था कि ज़कात के निसाब को समझना हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ये तय होता है कि किस पर ज़कात फर्ज है और किस मिकदार में अदा की जानी चाहिए। 4 चीजें बुनियादी तौर पर, नंबर 1 सोना गोल्ड, नंबर 2 चांदी सिल्वर, नंबर 3 नकदी करेंसी, नंबर 4 माल तिजारत। कुल ये 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है। यहाँ मैंने जानवरों को और औशर वगैरह को नहीं जिक्र किया, वो अलग है, उसके बारे में अलग से बात कर ली जाए किसी वक्त जब जिस आपको ज़रूरत पेश आए। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ज़कात जिन पर फर्ज होती है वो कुल ये 4 चीज़ें हैं। प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान ने शुरका को ज़कात के शरई मामलात, मुसारिफ और इसकी दुरुस्त तकसीम के हवाले से रहनुमाई फराहम की। अल्लाह ताला ने उसमें शरीयत में, इस्लाम में उसको माइनस कर दिया कि उस पर ज़कात नहीं होती। गैर काबिल ज़कात अशिया मनकूला भी हो सकती, गैर मनकूला भी। मनकूला अशिया जैसे हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ, जहाज़, कारखाने की मशीनरी। आपने ज़रई ज़मीन रखी हुई है, कई कनाल, कई एकड़, उस ज़मीन पर ज़कात नहीं है। तकरीब में फाउंडेशन के बोर्ड मेंबरान, डायरेक्टर्स, मुआवनीन और CEO फरहान अहमद भी शरीक हुए। पाकिस्तान में पैदाइशी दिल के अमराज के खिलाफ जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। लाहौर चैम्बर में गवर्नेंस, रिस्क और हकीकी दुनिया में AI को अपनाने बारे सेमिनार का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ने ख्वाजा ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। AI ने दुनिया को बदल दिया। 4G बेहतर करना अव्वलीन जिम्मेदारी है। चंद माह में 5G भी लॉन्च करने जा रहे हैं। हुकूमत ने अब तक 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप तकसीम किए। वफाकी वजीर शीज़ा फातिमा ख्वाजा कहती हैं, वजीर आज़म ने 5 साल में AI सेक्टर में 1 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिस तरह से दुनिया को बदल रही हैं, चाहे वो हमारी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या हमारे हेल्थ एजुकेशन सेक्टर्स हैं, हमारी इकॉनमी है, हमारे बिजनेसेस हैं, हमारी नेशनल सिक्योरिटी है, उस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक पाकिस्तान का जो स्टांस है वो डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी हमने वाज़े किया। तो वज़ीर आज़म साहब ने $1 अरब की अगले 5 साल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्वेस्टमेंट की बात की। हुकूमत AI और डिजिटलाइजेशन के मैदान में बहुत काम कर रही है। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल कहते हैं, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए तो IT टेक्नोलॉजी से ज़रिए मुबादला बढ़ाया जा सकता है। डिजिटल पाकिस्तान टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान के नाम से जारी कैंपेन के ज़रिए पाकिस्तान को आलमी सतह पर टेक हब के तौर पर मुतारिफ़ करा रही हैं। इनकी क़यादत में टेली
کام اور IT شعبے میں بڑی اصلاحات جاری ہیں جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری کا پاکستان میں فروغ ممکن ہو سکے گا۔ کانفرنس سے قبل وفاقی وزیر اور چیمبر کے وفد نے نئے ممبرز کی رجسٹریشن کے لیے لاہور چیمبر آف کامرس آن لائن پورٹل کا افتتاح بھی کیا۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ FW آرٹ اسپیس کے زیر اہتمام 7 روزہ تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ جواد کی سرپرستی میں آرٹ ریزیڈنسی خانسپور میں فنکاروں کی تخلیق یگے فن پارے پیش کیے گئے۔ DHA فیز 4 میں واقع FW آرٹ اسپیس میں منعقدہ نمائش میں ملک بھر کے 9 فنکاروں کے فن پارے پیش کیے گئے۔ وسپر آف خانسپور کے عنوان سے منعقدہ نمائش 20 فروری تک جاری رہے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ جواد کی سرپرستی میں آرٹ ریزیڈنسی خانسپور میں فنکاروں نے فن پارے تخلیق کیے۔ آرٹسٹ نے واٹر کلر، آئل پینٹنگ اور ایکرالک سے خانسپور کی خوبصورتی کو کینوس پر تخلیق کیا۔ پینٹرز نے لینڈسکیپ پر اپنے آرٹ کو خوبصورتی کے ساتھ سمویا۔ نمائش میں خانسپور میں واقع قدرت کے حسین نظارے، ماحولیات، ایکو سسٹم کو کینوس کی زینت بنایا گیا۔ پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ جواد نے کہا، خانسپور میں رہائش کے دوران ان تمام آرٹسٹ نے قدرت کے حسین نظاروں کو اپنے کینوس کی زینت بنایا۔ ہر آرٹسٹ کا اپنا میڈیم تھا، ہر آرٹسٹ کا اپنا ایک سٹائل ہے کام کرنے کا، تو یہ بہت مزہ آیا، اور جو کام پروڈیوس ہوا اس کے اندر جو انوائرمنٹ کی ایک فیلنگ تھی، کیونکہ یوزلی لینڈسکیپ ہوتے ہیں ہم کھیتوں میں کرتے ہیں، ہم پلین ایریاز میں جاتے ہیں، ہلی ایریاز پہ آپ کو کم کام ملے گا۔ تو اس شو کی خاص بات یہ ہے کہ ساری آپ کو اس میں ماؤنٹینس نظر آئیں گی، جنگلات نظر آئیں گے، گلیات نظر آئیں گی۔ آرٹسٹ کا کہنا تھا کہ لینڈسکیپ پر بہت کم کام دیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے تو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے واٹر کلرز، تو میری کوشش رہی ہے کہ خانسپور میں وہاں کی جو ٹھنڈ ہے اور اس کے ساتھ جو اس کولڈ ویدر میں جو لائٹس آتی ہیں ان کو میں نے کوشش کی کہ میں دکھا سکوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایگزیبیشن بہترین طور پہ ریپرزینٹ کرتی ہے ان تمام سچویشنز کو جو پاکستان میں اس وقت ایکو سسٹم کے حوالے سے ہیں۔ انوائرمنٹ کی سیفٹی جو ہے وہ ہمارا اولین فرض ہے۔ اچھا چینج ہے، بہت کم لینڈسکیپ پینٹنگ یا پلین ایئر پینٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے گیلریز میں، اور دوسرا کیونکہ ایک اسپیسیفک اسپیس ہے خانسپور، یہ وہ جگہ ہے جس سے بہت سے لوگوں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ نمائش میں عجب خان، عائشہ یاسر، دانش خان، مینا شجاع، نعمان خان، رفت سیفڈار، سائمہ عامر، ناصر شہزاد اور شہزاد خلیل کے فن پارے بھی نمائش کا حصہ ہیں۔ کیمرامین رانا عظیم کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42۔ رحمت پارک فیروز پور روڈ صدائمیوں ویلفیئر فورم پاکستان کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی۔ 47 جوڑے ازدواجی رشتے میں بن گئے۔ رحمت پارک فیروز پور روڈ صدائے میوں ویلفیئر فورم پاکستان کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں 47 جوڑے ازدواجی رشتے میں بند گئے۔ سرپرست عبدالستار اور محمد اکرم سمیت دیگر عہدیدار شریک ہوئے۔ یہ ہم نے سب سے پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے 13 بچیوں کی شادی کی تھی۔ آپ یقین کریں اس وقت ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اب جیسے ہی یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا ہے، لوگ اتنا ڈونیشن مانگنی نہیں پڑتی جتنا لوگ خود بخود آ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اب یہ 12 سال ہو گئے اس کو، ہر سال یہ جو ہے نا 25، 30، 35، پچھلے سال ہم نے 40 کروائی تھی، اب جو ہے نا 47 بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مخیر حضرات ہیں جو یہ ڈونیٹ کرتے ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، اس سے ہم یہ سارا نظام چلا رہے ہیں، تو اس میں ہماری ٹیم کا بہت بڑا کردار ہے۔ پھر ہمارے جو حافظ سلمان طارق صاحب ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے، انہوں نے ہمیں اس نیکی کے کام میں لگایا۔ شادی کے بندھن میں بننے والے جوڑوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ادھر آ کر، اور ہمارا گاؤں ہے دل کا۔ آگے بھی جن بچیوں کا کرے ان کے لیے بھی ان کو اور ہمت طاقت ملے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا کیا انہوں نے، لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے جو یعنی کہ ہیلپ کر رہے ہیں، ان کی مہربانی، تھینک یو ویری مچ۔ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے تاکہ جو لوگ جو ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ میکسیمم اس میں اپنا جو ہے حصہ ڈالیں۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ برجر پینٹس کے زیر اہتمام کرکٹ چیمپئن شپ CFO برجر پینٹس نعمان افضل میجر ریٹائرڈ خالد حسین سعدیہ اورنگزیب کی شرکت۔ کرکٹ چیمپئن شپ میں مختلف شعبہ جات کے ملازمین نے بھرپور شرکت کی۔
बजट पेंट्स के ज़ेरे एहतमाम क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शोबाजात के मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में बजट पेंट्स के सीनियर मैनेजमेंट भी शरीक हुई। CEO जफर किदवई, CFO नोमान अफजल, HR हेड सादिया औरंगजेब और हेड ऑफ एडमिन एंड सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड खालिद हुसैन ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। CEO बजट पेंट्स जफर किदवई ने मुलाजमीन की हौसला अफजाई, इदारा जाती कल्चर पर इजहार ख्याल किया। अब वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक जगह पर एक टीम के में रह के और वो खेलते हैं, और फिर उसमें एक तो स्पोर्ट्स की हेल्दी एक्टिविटी अपनी जगह पर है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा एक्साइटमेंट होता है इसका। 1.5-2 महीने से इसकी तैयारी जारी होती है, लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जो डाई हार्ड क्रिकेटर्स जो हैं या लवर्स हैं उसके क्रिकेट के, वो सारे तैयारियां कर रहे होते हैं। हेड ऑफ एडमिन एंड सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड खालिद हुसैन का कहना था कि खेलों के जरिए सेहतमंद मुआशरे को फ़रोग मिलता है। हम हर साल एक इवेंट कराते हैं, लोगों को जो उनकी रूटीन मैटर्स हैं उससे निकाल के, ताकि लोग उनका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और रिलैक्स मोड में आके उनकी जो एफिशिएंसी हो हमारी बेहतर हो सके। HR हेड सादिया औरंगजेब ने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए ऐसी सरगर्मियां मुफीद साबित होती हैं। हम हर साल करवाते हैं ये, और इसके पीछे जो मकसद है वो बेसिकली ये है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो सब एक साथ आएँ और एंजॉय करें। आप देख रहे होंगे कि सब लोगों की फैमिलीज़ भी यहाँ पे आई हैं। चैंपियनशिप में मुलाजमीन की फैमिलीज ने भी शिरकत की और मैचेस से लुत्फ अंदोज हुई। इवेंट का इख्तिताम खुशगवार माहौल में हुआ, जहाँ इदारे के अंदर यगानगत और मजबूत तंजीमी सकाफत का अमली इजहार देखने में आया। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42। वर्ल्ड कप T20 2026 में पाक भारत मैच को क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की मारूफ रियल एस्टेट कंपनी UK डेवलपर्स ने कौमी टीम की हौसला अफजाई के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर दिया। कंपनी के आला हुकाम का कहना है कि वर्ल्ड कप T20 2026 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन के जज्बात से जुड़ा हुआ है। UK डेवलपर्स ने ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच जीतने में कामयाब हुई तो कंपनी की जानिब से खसूसी इनाम दिए जाएंगे। CCOU के डेवलपर्स ने कहा कि हम सब पाकिस्तान टीम के साथ खड़े हैं, पूरी कौम की तरह हम भी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने कहा कि टीम की हौसला अफजाई के लिए UK डेवलपर्स की जानिब से मैच के बेहतरीन खिलाड़ी को बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस इकदाम का मकसद न सिर्फ कौमी टीम की हौसला अफजाई है बल्कि पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी भी है। उन्होंने पूरी कौम से अपील की कि वो टीम पाकिस्तान के लिए दुआ करें और इस तारीखी मुकाबले में खिलाड़ियों का हौसला बुलंद रखें। CEO बिलाल अहमद, UK डेवलपर्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चेयरमैन PCB का मशकूर हूँ, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का सर फखर से बुलंद कर दिया और हमारे दिल जीत लिए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला टाकरा, जिसमें टीम की जीत में अहम किरदार अदा करते हुए मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने वाले खिलाड़ी को UK डेवलपर की जानिब से वतने अजीज की मोहब्बत में 2 मिलियन रुपए नगद इनाम दिया जाएगा। UK डेवलपर की जानिब से पाकिस्तानी टीम के लिए नेक तमन्नाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, नेशन पाकिस्तान। जिस तरह हमारे CEO UK डेवलपर्स ने अभी एक मेगा अनाउंसमेंट की है फॉर द टीम पाकिस्तान, इसको मैं इनकरेज भी करता हूँ और आई एम वेरी मच होपफुल कि जो कल का मैच होने जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो जीत के साथ वतन अजीज को जो है एक बहुत बड़ी खुशी जो है वो देगा। और इस अनाउंसमेंट को जिस तरह हमारे CEO UK डेवलपर्स मियां बिलाल साहब ने भी अनाउंस किया है, इसकी पूरी एक तकरीब जो है टोकन ऑफ लव को देने के लिए वो मैन ऑफ द मैच और जो बेस्ट परफॉर्मर होगा पाकिस्तान की जानिब से, वो UK डेवलपर्स की जानिब से एक भरपूर तकरीब का एहतमाम जो है वो यहाँ पे किया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, नेशन पाकिस्तान जिंदाबाद। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पंजाब के ज़ेर-ए-तमाम रमजान बचत फेस्ट का इनेकाद किया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने इफ्तिताह किया। तकरीब में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, बिलाल यासिन, बिलाल अकबर खान, मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक और मुआवने खसूसी सलमा बट ने शिरकत की। महकमा फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन पंजाब के ज़ेरे एहतमाम रमजान बचत फेस्ट का इनेकाद किया गया। मुआवरे खसूसी सलमा बट ने सूबाई वुज़रा और दीगर मेहमानों को रमजान बचत फेस्ट में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स पर ब्रीफिंग दी। सलमा बट ने बताया कि 150 स्टॉल्स पर फ्लैट 20% रियायत दी जा रही है। मजमूई तौर पर 20 से 25% तक डिस्काउंट फराहम किया जा रहा है। सलमा बट ने कहा, पंजाब के 74 सहूलत बाजारों को रमजान बाजारों में तब्दील कर दिया गया है। सहूलत बाजारों को रमजान बाजार में कन्वर्ट कर दिया गया। 74 से जायद रमजान सहूलत बाजार जो हैं तमाम पंजाब के इजला में लगा दिए गए हैं।
वो भी आज से शुरू कर दिए गए हैं ताकि वीकेंड के ऊपर लोगों को बाइंग की जो है सहूलत दी जा सके। सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि पहली बार फी घराना 10,000 रुपए घर भिजवाने का इकदाम किया जा रहा है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की कायदाना सलाहियतें हैं और उन्होंने हमेशा पंजाब के लोगों के लिए, जब से वो आई हैं, आप देखेंगे पंजाब के लोगों को हर दिन खुशखबरियां मिल रही हैं, रिलीफ मिल रहे हैं, खुशियां मिल रही हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि रमजान से कबल अशिया ज़रूरिया की कीमतों और दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। मेरे भाई बता रहे थे मियां साहब कि हम 40 लाख फैमिलीज को बड़ी राजदारी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ 10,000 रुपया उनके डोर स्टेप पे उनको दे रहे हैं। ये इतने ज्यादा इनिशिएटिव्स पहले क्यों नहीं किसी को तौफीक हुई। ढोलचियों ने ढोल की थाप पर माहौल को गरमाया, जबकि लोक फनकारों ने सूफी मौसीकी पेश की। गुलकार आरिफ लोहार की लाइव परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। रमजान बचत फेस्ट की तकरीब में सकाफती रंग भी नुमाया रहे। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हजूरीबाग शाही किला में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स के एजाज में अशाया। तकरीब में वफाकी वजीर एहसन इकबाल और सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। हजूरीबाग शाही कला में PKLI ने बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम के मौका पर बैनुल-अक़वामी डॉक्टर्स और सर्जन्स के एजाज में शाइया दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रोफेसर सईद अख्तर ने इदारे की कामयाबियों पर रोशनी डाली। We are able to create a system of network of 18 clinics which are doing this prevention job in the clinics. It started with the prevention of hepatitis B and C, but now they have become a filter clinic. चेयरमैन ऑर्गेनाइजर सिंपोजियम डॉक्टर उस्मान ओजला ने प्रेजेंटेशन पेश की। He has contributed significantly in reforming the future vision of this country. He has done enormous contribution in terms of policy development, bringing special reforms, and we believe in his leadership that he will also a very valuable and instrumental personality. सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने PKLI के साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। Professor Saeed, an internationally renowned expert in kidney disease, met with the Honorable Mr. Shahbaz Sharif. Through Professor Saeed's dedication and expertise, this vision became a reality with the establishment of Pakistan Kidney and Liver Institute, which is now a state-of-art institution serving the entire country. वफाकी वजीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल ने भी इज़हार ख्याल किया। In tertiary healthcare, governance is not administrative, it is clinical. Transparent procurement ensures drug quality. Structured oversight prevents system leakage, and accountability reinforces patient safety. मेंबर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, डॉक्टर्स और मेहमानों की बड़ी तादाद भी तकरीब में मौजूद थी। मुल्की और गैर मुल्की डॉक्टर्स को उनकी खिदमात के अतराफ में सवीनियर्स भी पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर म्यूजिकल नाइट का भी एहतमाम किया गया, जिससे शुरका खूब महजूज हुए। कैमरामैन असद के साथ आफाक नजीर, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।